Dear students, today we will discuss most important cell organelle, mitochondria. In singular, it is called mitochondrion. Plural is mitochondria, singular is mitochondrion. Mitochondrion अर्थ गोटे mitochondria. बहुत गुड़े mitochondria mitochondria. This is the plural form. This is the singular form. Mitochondrion. First discovered by. It is most important cell organelle. The definition को जिबा को हमें कहबा. It is a membrane bounded cell organelle present in cytoplasm. It is a membrane bounded cell organelle present in cytoplasm of eukaryotic cell. This is called mitochondria. Membrane bounded cell. First discovered by in 1880s scientist Kollikor. First discovered in muscles cells of insect. Muscle cells of insect ro se first discover करते mitochondria, and it is named by scientist Benda in 1898. It is named by the term mitochondria is given by the scientist Benda and first discovered by scientist Kollikor. Okay. Then another scientist Altman. It is called the mitochondria को कहते हैं bioplast. Mitochondria is a bioplast अर्थात biomembrane covering mitochondria, and it is described by the name. Altman named the mitochondria as bioplast. Okay. Then its number के में देखा जाए. The presence of mitochondria's number is varies from cell to cell. The more active cells, but which cell require more energy or which cell function more metabolic activities, then mitochondria number is more. Less activated cells, mitochondria number is less. ताकि जब हम देखिबा नंबर को जब देखिबा क्लामियोडोमोनास is a algae one mitochondria present. जदि हमें इंसेक्टर मसल सेल्स से देखिबा इंसेक्टर मसल सेल्स से the mitochondria number is 1000. जदि हमें लिवर सेल को देखिबा लिवर सेल रे जो माइटोकॉन्ड्रिया थाए 2500. So the number of mitochondria varies from cell to cell. The more metabolic activity cells have the more number of mitochondria. Less metabolic activity cell has a less number of mitochondria. Then shape in some organism the mitochondria is rounded shape or spherical shape or a cylindrical shape. So then we'll go to the structure of mitochondria को जिबा structure of mitochondria मैं already diagram draw कर देछि ताको labeling करबा very important ले. It is a membrane bounded cell organelle. That means this is a mitochondria, this is
outer membrane. This is inner membrane. The gap between outer membrane and inner membrane, this portion, this is called outer compartment. Outer compartment or perimitochondrial space. Perimitochondrial space, outer membrane, inner membrane भीतर जो gap, this filled of some enzymes, some lipids, fluid-like structures, and this is called perimitochondrial space. This is inner membrane. Inner membrane folds into the interior, and this space, the central space, that is called matrix. That is called matrix. This is matrix. This is matrix. This is matrix. And the inner membrane folds and moves towards the matrix, and the folded structure of inner membrane is called crista. So the outer membrane, inner membrane, matrix, a matrix भीतर कौन था ना सर्कुलर डीएनए था. कौन था? सर्कुलर डीएनए. सर्कुलर डीएनए आज प्रोकैरियोटिक डीएनए होची सर्कुलर डीएनए, and ए माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये सर्कुलर डीएनए था, ताको कहते एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. साधारणतः डीएनए हमर न्यूक्लियस भीतर थाए, ये किंतु बाहर अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया भीतर डीएनए अच्छी, and have the genetic having the genes and the capable of replication and capable of transcription and translation and formation of the different proteins and enzymes. So this is extra chromosomal DNA, rounded DNA. This is rounded DNA, circular DNA, circular DNA. Inside the matrix, some ribosomes also present. Ribosomes. This is ribosomes. But ribosomes are cell organelles present in cytoplasm. But in mitochondria, ribosomes also present. But here the co-type ribosomes, 70S ribosome. Two types of ribosomes अच्छी. हमें ribosome पढ़ना में कोई भी 70S, 80S. तो 70S ribosomes present in mitochondria inside the matrix. Inside the matrix. ये matrix भीतर कौन रहूची ना divalent ions, magnesium and manganese. Manganese or divalent ions रहूची and different respiratory enzymes. Different respiratory enzymes अर्थ respiration करे प्रोसेस चलवा अर्थात क्रेब्स साइकिल चलवा पाए हमें पढ़िबा फिजियोलॉजी रे ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल तुम 10th क्लास रे पढ़ी के आसीचो. से क्रेब्स साइकिल चलवा पाए जे सब एंजाइम आवश्यक ही थाए ए मैट्रिक्स भीतर थाए. तो मैट्रिक्स भीतर हमें कौन देखिले ना डिफरेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, डाइवैलेंट आयंस. डाइवैलेंट आयंस का काम कोन? दे एक्ट एज ए एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स रो काम को एक्टिवेट करबा पई ए आयन गुडिकर भूमिका अछि. आउ कोन देखिले ना सर्कुलर डीएनए आउ 70S राइबोसोम. These are constituents of the matrix. These are constituents of the matrix. Space between inner membrane and outer membrane, that is called perimitochondrial space. Perimitochondrial space. In the membranes are composed of lipoprotein as the cell membrane. Cell membrane is जेमिति lipoprotein अच्छी अर्थ protein
लिपिड प्रोटीन दी साइड रे प्रोटीन मोनोलेयर लिपिड बाइलेयर यार मेम्ब्रेन मध्य ए लिपोप्रोटीन रे गठित किंतु आउटर मेम्ब्रेन रे लेस प्रोटीन एंड इनर मेम्ब्रेन रे मोर प्रोटीन लेस प्रोटीन थिबा जोगु ये कौन करे ना इट इज परमिएबल बट इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली permeable आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल सब एलिमेंट्स भितर को छाड़िया पे परमिएबल कि इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे देखिबा ताला आहुरी बहुत गुडी जिंस हमको देखा जिवो यार डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर सहित रही ये साधारणतः माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल यूकारियोटिक बॉल बट absent in some protists और जदि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोटिस्ट माने करंती सेमानक ठारे माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाय नै मैच्योर्ड मामालियन आरबीसी रे मध्य देखा जाय नाही किन अधिक संख्यक देखा जाय स्पर्म्स रे हमर लिवर रे ये जोठी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जोर से अधिक संख्या देखा जाए तो जाको हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखि आउ कोन देखा जाए हमें देखिले एठी जे मैट्रिक्स रे कोन देखा जाउची क्रिस्टा कोन इनर मेम्ब्रेन रो क्रिस्टा फॉर्मेशन आइची फोल्डेड एंड पुश्ड इनटू द कैविटी ऑफ द मैट्रिक्स ताकू जदि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये कोटी देखिबा ताहाले केमति देखा जिवो दिस इज इनर मेम्ब्रेन this is outer membrane okay inner membrane रो ये क्रिस्टा माना करी ये क्रिस्टा हाँ एक क्रिस्टा रे गोटे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है दिस इज inner membrane. This is outer membrane. Base, stalk and head. This is base, stalk, head, and this complex is called F0 F1 particles. That is, this is F0, this is F1. ए हेड रे गोटे एंजाइम था से एंजाइम कौनती एटीपेज इट एक्ट एज एंजाइम एटीपेज एंजाइम और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को एटीपेज एंजाइम कहा जाए यार माध्यम रे हमर एटीपी सिंथेसिस होइता हम जानिछे जे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए काहे कि ना एनर्जी सिंथेसिस करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी and which is required to metabolic process inside these cells तेनो ये एटीपी सिंथेसिस हुए तो एटीपी सिंथेसिस हेबा पई मेकानिज्म कोन हमें फिजियोलॉजी रे पढिबा कि किछि मु तुमको आईडिया दोची जो इनर मेम्ब्रेन रे केतो गुडे इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉन बाहर कैरियर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे जो एंजाइम गुडी का दरकार है था इलेक्ट्रॉन जो कैरियर रूपे बाहर होता है से गुडी को सब इनर मेम्ब्रेन रहंती ए फोटो दिस इज मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स फेस करके रहउची कोन ना तमर क्रिस्टा तो एटू एक जेतबे ग्रेडिएंट है थाए प्रोटॉन रो तो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स रो इनर जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को प्रोटॉन ग्रेडिएंट है पंप आउट है पंप आउट
पुणी जितेबाला पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस रे प्रोटॉन रो परिमाण बढ़ी जाए ये पुणी कौन हम ना ताको बैलेंस करने मैट्रिक्स पुणी थे मैट्रिक्स भीतर को जीव तो मैट्रिक्स भीतर को जीव किंतु से अन्य बाट दे जाई पारेनी से को बाट दे की जीव ना एई पार्टिकल को ए पार्टिकल को मध्य कहा जाए ऑक्सीजोन ऑक्सीजोन ओके तो ऑक्सीजोन दे की गला परे एट जो एटीपेज एंजाइम अच्छी ए एनर्जी हायर एनर्जी रो लोअर एनर्जी की मूवमेंट करिवो एनर्जी तो ए बटे मूवमेंट कला को एटीपेज एंजाइम कोन करता है ना एडीपी प्लस फॉस्फेट को मिसे की एटीपी सिंथेसिस करता है ए भली भाबे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है ओके तो माइटोकॉन्ड्रिया which is known as powerhouse of the cells because it synthesizes energy in the form of ATP. Okay, so this is oxygen. It is present in all eukaryotic cells, किंतु in some bacteria. Bacteria रे mitochondria न थाए, ताल तंगर energy केमती आसुची? मु तुमको पढ़ी थी प्रक्टोबा बैक्टीरिया रे तुम mesosomes बोली, mesosomes. It is formed by the plasma membrane. Plasma membrane to form the enzymatic structure. Its function is like mitochondria in prokaryotic cell. But in eukaryotic cell, oxygen is a F0F1 particle or oxygen बोली कहा जाए बा F0F1 particle मध्य कहा जाए यार माध्यम रे ATP synthesis होता है. Okay, then हमें देखिए वर्तमान फंक्शन कौन माइटोकॉन्ड्रिया रो फंक्शन कौन फंक्शन फास्ट एटीपी सिंथेसिस करूची फास्ट कोन एटीपी सिंथेसिस करूची सेकंड फंक्शन को जीवा ये करबा कोन करबा ना इट प्रोड्यूस proteins lipids and enzymes कहीं प्रोटीन्स केमती सी सिंथेसिस करे आमे जानचे प्रोटीन सिंथेसिस केमिति होची कहा डायरेक्शन रहउची ना डीएनए डायरेक्शन रहउची डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस डीएनए डायरेक्शन रे एमआरएनए तयारी होची दिस इज ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए माध्यम रे टीआरएनए और आरएनए साहाय्य रे टीआरएनए और आरआरएनए टीआरएनए आरआरएनए मध्य एठी मैट्रिक्स भीतर प्राय देखा जाए ते प्रोटीन संश्लेषण होची and some protein act as enzymes तो न्यूक्लियर डीएनए रो डायरेक्शन रे प्रोटीन तयारी होची इन जनरल हम सेकंड ईयर रे पढिबा दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन हैला डीएनए रो एमआरएनए सिंथेसिस करते ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए रो प्रोटीन को करगा ट्रांसलेशन तो प्रोटीन तयारी पर प्रोटीन ही हमर सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी रे दरकार हेता प्रोटीन तेणु जेहेतु आम निजस्व डीएनए अच्छी एवं राइबोसोम इज ए सेल व्हिच इज कॉल्ड एज ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अर्थ राइबोसोम ऑर्गेनेल माध्यम रे ही प्रोटीन सिंथेसिस हेई थाए तेणु दीड जाक थिबा जोगु या पे निजस्व प्रोटीन मध्य से किछि मात्रा रे सिंथेसाइज करि पारे किंतु सब प्रोटीन सिंथेसाइज करि पारेनी आउ जहाँ किसी प्रोटीन दरकार ता न्यूक्लियर डीएनए ऊपर निर्भर करे तो किछि प्रोटीन से सर्कुलर डीएनए बा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जहाँ हम कहूचे तार इंस्ट्रक्शन रे हां ए प्रोटीन संश्लेषण हे पारे सेहि पय माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाए सेमी ऑटोनोमस organelle that means it can produce protein it can produce own protein but not all proteins
किछि मात्र प्रोटीन रहता है आउ किछि पय न्यूक्लियर डीएनए पर निर्भर करता है सेति पय कोला सेमी so semi autonomous organelle due to presence of own circular DNA and ribosomes using circular by the direction of the DNA circular DNA and by using the ribosome 37 ribosomes it can synthesize its own proteins. So it is called semi-autonomous organelle. आउ कौन तरह ये करता है नेक्स्ट फंक्शन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कौन आमे जानी छे इनहेरिटेंस न्यूक्लियर डीएनए इनहेरिटेंस अर्थ पेरेंट रु ऑफस्प्रिंग को आसी थाए पेरेंट रु ऑफस्प्रिंग को आसान को जे इनहेरिटेंस. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कौन जे ना हमरो ओभारी ओव्यूम माइटोकॉन्ड्रिया अछि. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. स्पर्म आसीबो मिसले जाइगोट फॉर्मेशन होउची. जो जाइगोट फॉर्मेशन होउची जाइगोट दिस इज ओव्यूम, दिस इज स्पर्म. जो मिक्सिंग रे जाइगोट फॉर्मेशन होउची द मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया pass to the zygote. This is called cytoplasmic inheritance. This is called cytoplasmic inheritance. तो एक origin जदि हमें देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया origin कौन ये मध्य यार फंक्शन मध्य it helps in evolution. यार origin कौन आसी केमिति माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया निजे रिपेयर हे पर जेहेतु तार निजस्व डीएनए रहउची से निजे रिपेयर हे पाइबो हला. तो ये मध्य डिवीजन मध्य हे परिबो सेल डिवीजन मध्य हे पर सेल डिवीजन है कि विभिन्न सेल को मध्य जाई परिबो. तो यार उत्पत्ति कोठ होईची साइंटिस्ट मान साधारणतः कहते जेहेतु आर निजस्व डीएनए अछि निजस्व रेप्लिकेबल कैपेसिटी अछि निजस्व रिपेयरिंग कैपेसिटी अछि. तो these are comes from the prokaryotic cells. प्रोकार्योटिक सेल रू इवॉल्व है कि यूकैरियोटिक सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये जिते बड़े अन्य सेल को जीव ये माइटोकॉन्ड्रिया ये मध्य सेल डिवीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया मध्य अन्य सेल को इनहेरिट की जाय थाए. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया. इन नेक्स्ट video I will discuss the next cell organelle ribosome and please see the description box. In next day I am putting some questions for you. Okay, thank you.